اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے۔ وہ سب گاؤں پہنچ چکے تھے۔ سب نے ہی صابن سے رگڑ رگڑ کر منہ ہاتھ دھوئے، بالوں میں برش کیا، پھر بڑے کمرے میں آ بیٹھے۔ کھانا تیار تھا، مرغ کا سالن، تندور کی روٹیاں اور میٹھے کی جگہ پر کچھ موسمی پھل۔ یہ تو بریانی، کباب، کوفتے اور میٹھے میں کھیر کی توقع کر رہے تھے، مگر خیر بھنا ہوا مرغ بھی برا نہیں تھا۔ رائتا کھانے کا تو مزہ ہی آ گیا، اور کھانے کے بعد جو چائے آئی وہ بھی مزیدار سی تھی۔ باتوں میں شام ہو گئی اور ڈھولک بجنے کی آواز آنے لگی۔ لو بھائی، ادھر تو گانے شروع بھی ہو گئے، ہم ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئے۔ وہ بھابھی فاخرہ کو دیکھا ہے تم نے؟ صبح سویرے اٹھ کر اپنا کمرہ شیشے کی طرح چمکاتی ہے، بھائی کے کپڑے دھونے کے بعد استری کر کے رکھتی ہے۔ میں تو پڑھی لکھی شہری بیوی لے کر پچھتا رہا ہوں۔ میری گھر کی ساری عورتیں صبح سے شام تک کام کرتی ہیں، مجالے جو کسی نے بہانے بنائے ہوں۔ ہر کام ستھرا ہوتا ہے، اور تم جو کرتی ہو دیکھ کر بندہ سوچتا ہے نہ ہی کرواتا تو بہتر تھا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو ناولٹ ہے اس کا نام ہے مٹی اور موسم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر اس ناولٹ کو شروع کرتے ہیں۔ کالج سے جب وہ 2:30 بجے کے قریب نکلی تو موڈ خاصا خراب تھا۔ اس کی 3-4 وجوہات تھیں۔ آج اس کی سب سے بہترین دوست ندرت کالج نہیں آئی تھی، لہٰذا سارا ٹائم بوریت کی لپیٹ میں گزرا۔ آج اکنامکس کی ٹیچر کا موڈ بھی خراب تھا، بات بات پر طنز کے تیر برسا رہی تھیں، اور مس نسیمہ کو نالائق اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے خوب ہی نواز رہی تھیں۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ صبح ناشتہ کر کے نہیں نکلی تھی کہ ناشتے میں برائے نام گھی لگے پراٹھے اور رات کی بچی ماش کی دال تھی۔ وہ بھوکی کالج آ گئی تھی، جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کینٹین کی راہ لی جا سکتی۔ سب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اور وہ یہی سوچتی گھر واپس آ رہی تھی، پتہ نہیں آج اماں نے کیا پکایا ہوگا۔ گلی میں داخل ہوئی تو کسی گھر سے کباب فرائی کرنے کی خوشبو آ رہی تھی، اور ساری گلی مہک رہی تھی۔ تھوڑا اور آگے آئی تو اندازہ ہوا کسی قریبی گھر میں خوب مسالے والے چاول پک رہے ہیں۔ رک کر گہری سانس اپنے اندر اتاری، اور ساتھ ہی اداسی بھی۔ مہینے کا آخر ہے، ہمارے گھر ٹنڈے، شلجم یا اسی ٹائپ کی کسی دوسری سبزی کے سوا بھلا کیا پک سکتا ہے، وہ بھی برائے نام گھی کے ساتھ۔ توبہ یہ غربت بھی کیا بری شے ہے۔ یہ تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے پرانے مکان جن میں سیلن اتر آئی ہے تو کہیں پر پلستر اکھڑ چکا ہے، اینٹیں تک بھر بھری ہو رہی ہیں۔ اب اس کے سامنے اپنا گھر تھا، اور وہ بے حد رنجور سی گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر دروازے پر پڑا پردہ ہٹاتے ہی جی چاہا کہ نعرہ لگائے اور ناچنے لگے۔ چھوٹے سے صحن میں جیسے منڈی لگی ہوئی تھی۔ ایک جانب امرود خوشبو بکھیر رہے تھے، ساتھ ہی ایک عدد ٹوکری میں کینو اپنی چھب دکھلا رہے تھے۔ ایک عدد کنستر یقیناً دیسی گھی کا تھا، تو قریب ہی ایک ٹوکری میں دیسی انڈے پڑے تھے، اور تو اور 3 عدد زندہ سلامت مرغیاں جن کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں، صحن میں لیٹی گردن اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ کمرے سے ہنسنے بولنے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ قدموں میں تیزی، چہرے پر رونق، آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آج یقیناً خالہ پینو آئی ہوں گی۔ واہ کیا ٹھاٹھ ہے ان گاؤں میں رہنے والوں کی بھی۔ وہ آگے بڑھی اور باورچی خانے کے قریب پہنچ کر رکنا پڑا۔ واہ کیا پیاری خوشبو آ رہی تھی، یقیناً کوفتے پک رہے تھے۔ جلدی سے اپنے اور بھائی بہنوں کے مشترکہ کمرے میں جا کر بیگ رکھا، چادر اتاری، اپنے کپڑوں میں سے نسبتاً اچھے کپڑے نکالے اور غسل خانے میں گھس گئی۔ جب وہ سبز اور فیروزی پرنٹ کا سوٹ پہننے بڑے کمرے میں آئی تو یہاں خالہ پینو کے ساتھ ساتھ ایک اجنبی صورت بھی موجود تھی۔ اس نے بڑی محبت سے خالہ کو سلام کیا، پھر ان خاتون کو بھی سلام کر کے وہ یہیں خالہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کتنا پیارا سوٹ پہن رکھا ہے، اور سچ تو یہ کہ صورت پیاری ہو تو سب سج ہی تو جاتا ہے۔ خالہ کی تعریف پر وہ شرما گئی۔ نسیمہ، اس نے ہانڈی بنا لی ہے، تیرا چھوٹا بھائی گیا ہے بازار سے روٹی لینے، تو سلاد بنا لے، وہ بس آتے ہی ہوگا۔ اور سن، تیری خالہ گاجر کا حلوہ بھی بنا کر لائی ہے، وہ بھی گرم کر لینا۔ اس نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے ہی ہانڈی میں سے 2 عدد کوفتے نکال کر صبح کا بچا پراٹھا ڈھونڈ کر اس کے ساتھ کھائے۔ حلوہ گرم ہو گیا تو اس سے انصاف کرنے لگی۔ اتنے میں چھوٹی دونوں بہنیں بھی اسکول سے آ گئیں۔
सहन में पड़ी सौगातों को देखकर उनके चेहरे भी जगमगाने लगे। किचन में झांका और इसे हलवे से शौक फरमाते देखकर वहीं विराजमान हो गई। कहीं भागा नहीं जा रहा हलवा, जाओ जाकर कपड़े बदलो। इसने आंखें दिखाई, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं थी। हामिद बाज़ार से रोटी ले आया तो याद आया कि अम्मा ने तो सलाद बनाने को रवाना किया था। ओफ़ो, एक तो मेरी याददाश्त बड़ी ही कमज़ोर है। जल्दी जल्दी सलाद काट कर प्लेट सजाई, सालन निकाला, रोटी दस्तरखान में लपेटी और मेहमानों की खिदमत में उन बर्तनों के साथ पेश की जो अम्मी जी ख़ास मेहमानों की आमद पर निकालती थीं। उन्हें खाना देकर चारों भाई बहन किचन में बैठकर दावत उड़ाने लगे। अब्बा अम्मी के मैके वालों की आमद को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, लेकिन खाला पीनू की आमद पर तेवरी चढ़ाएं इतने अहमक भी नहीं थे। उनका इस्तकबाल तो हमेशा खुले दिल से करते थे। हालांकि वो अम्मी की सगी बहन नहीं थी, मगर सच है आजकल पैसे वाला ही सबसे सगा होता है। खाला पीनू खुद तो कभी साल 2 साल बाद ही चक्कर लगाती थी, लेकिन उनके गांव का कोई ना कोई फर्ज जिसे किसी मुकदमे की पेशी भुगताने शहर आना होता, या फसलों के लिए बीज खाद वगैरह की ख़रीदारी का मसला होता, या किसी और वजह से शहर आमद ज़रूरी होती, तो खाला पीनू इसे इन्हीं के घर का पता बताकर रवाना करती। ना सिर्फ रवाना करती बल्कि खूब लाद कर रवाना करती। कभी सैरों के हिसाब से दूध, मक्खन, शक्कर और चावल आ रहे हैं, तो कभी मौसमी फल तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए ऐसे मेहमानों का स्वागत खुशी से, बल्कि अक्सर तो उनकी औकात से बढ़कर किया जाता था। और वापस जाकर वो खाला पीनू के सामने उनके शहरी रिश्तेदारों के गुण गाते नहीं थकते थे। आज अब्बा भी सड़कों के धूल फांकने के बाद जब घर आए तो मूड ही बदल गया। सीधे किचन में तशरीफ़ लाए, जहाँ बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आज फिर गांव से मेहमान आया है। अब्बा की निगाह सहन में बंधी पड़ी देसी मुर्गियों से हट ही नहीं रही थी। जी अब्बा, आज तो खाला पीनू खुद आई हैं और साथ में एक और ख़ातून भी है। अच्छा, तुम्हारी माँ ने खाना तो अच्छा बनाया ना उनके लिए? अरे अब्बा, वो इतना सारा गाजर का हलवा तो खुद उठा लाई हैं। हामिद ने पतीले की जानिब इशारा किया। भाई, बड़ा दिल है इस औरत का। अब्बा मज़ीद खुश होकर बोले। खाला पीनू को सलाम करने चल पड़े, लेकिन वापस मुड़े। चाय पर कुछ एहतमाम कर लेना नसीमा, खाली चाय ना उठा लाना। जी अब्बा। इसने अंडा खाते बमुश्किल आवाज़ निकाली। अब्बा ने एक मुर्गी तो शाम ही को ज़िबा कर ली। अब इसे पकाने की तैयारियां हो रही थी और अम्मी बता रही थी, ये जो ख़ातून साथ आई हैं पीनू के ही गांव की हैं और बहन बनी हुई हैं। उनकी बेटी की शादी है, इसकी ख़रीदारी के लिए आई हैं और हम सबको शादी में शिरकत की दावत दे रही हैं। अम्मी, हम चलेंगे ना? सच्ची मुझे गांव देखने का बड़ा ही शौक़ है। सबसे पहले नसीमा बोली, फिर बाकी बहन भाई भी यही बात दोहराने लगे। हाँ भाई, सब चलेंगे, तुम्हारे अब्बा ने तो फ़ौरन हामी भर ली है। अम्मी भी खासी खुश दिखाई दे रही थी। वो खातून और पीनू खाला अगले रोज़ अम्मी के साथ बाज़ार गई। सारा दिन लगाकर शाम को वापसी हुई और रात यहाँ गुजार कर सुबह सुबह अपने गांव चली गई। लेकिन जाते जाते एक बार फिर गांव आने की दावत देना नहीं भूली। शादी में जाने के लिए तीनों बहनें तो बहुत ही बेचैन थी। नए कपड़े बनवाने की बात की तो अम्मी बोली, भाई वो गांव के सादा लोग हैं, उन्होंने कौन सा तुम्हारे कपड़े देखे हुए हैं, बस यही कपड़े साथ रख लेना, नए बनवाने की ज़िद मत करो। यूँ भी शादी पर जाने का ख़र्चा, फिर वहाँ जाकर दुल्हन को नकद के अलावा कोई तोहफ़ा भी तो देना है, ये सब मुझे ही पूरा करना है। तो ये वो खामोश हो गई। ये मुर्गियाँ, अंडे अम्मी को काफ़ी बचत करवा गए थे, इसलिए दुल्हन के लिए एक अदद सूट और एक रेशमी बेडशीट ख़रीद ली। इन्हें बज़रिया बस गांव जाना था, लेकिन पीनू खाला जिंदाबाद। उनके गांव का एक नौजवान अपनी पुरानी सी गाड़ी में किसी काम से इन्हीं दिनों में शहर आ रहा था, तो इससे कह दिया, मेरे अजीज़ों को भी लेते आना। लो जी, बस का ख़र्चा भी बच गया। अम्मी अब्बा तो बाग बाग हो रहे थे। ये मार्च का महीना था, सर्दी दम तोड़ रही थी। स्कूल कॉलेज मौसम बहार की तातीलात की वजह से बंद थे और वो सब इसी पुरानी सी गाड़ी में बुरी तरह लदे फंदे लेकिन बेहद खुश गांव के जानिब रवां दवां थे, जहां पर हरे भरे खेत और फलों से लदे बागात थे, खुले हवादार मकान और खाते पीते खुशबाश बेफिक्र लोग बसते थे। नौजवान कार का मालिक नहायती बातूनी वाक़ हुआ था। दूसरी खूबी ये थी कि गुफ्तगू भी नहायत बेसरोपा करता था। अगर वो सब इसकी गाड़ी में सवार ना होते
तो कभी का झड़क कर खामोश करवा चुके होते, अब मजबूर थे। इसलिए अम्मी अब्बा नहायत दिल जमी से बज़ाहिर इसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। जीटी रोड तक खैरियत रही। जो ही गाड़ी कच्चे रास्ते पर आई, सफ़र का लुत्फ जैसे दुबाला हो गया। हर झटके पर इन भाई बहनों के सर आपस में टकराते थे और नसीमा को लगा उनकी हाय होए से वो खासा हिज़ उठा रहा था। लो जी, हमारा पिंड शुरू हो गया। देखो जी, हरे भरे खेत और ये नहर, ये हमारे गांव से गुज़रती है। इधर बाग भी है, मेरी अपनी ज़मीनें भी हैं। अब तो आप सारे गांव के मेहमान हो, मेरे घर भी आना, अपनी ज़मीनों पर लेकर जाऊंगा। गोभी की फसल तो इस बार बड़ी अच्छी हुई थी। मेरी अम्मा गोभी के पराठे बड़े अच्छे पकाती हैं, खिलाएंगे आपको भी। और मैंने गंदम भी लगाई हुई है, अच्छी फसल हुई है। देसी गंदम का क्या स्वाद होता है ये भी बताएंगे आपको। वैसे इधर पिंड में एक डाकखाना भी है। डाकखाने से याद आया, मेरा पता लिख लेना, जब भी ज़रूरत पड़े खादिम हाजिर हो जाएगा। इधर जी हमारे के मज़ारे भी होते हैं, और वो उधर उस पास से हमारे पीर का मज़ार होता है। और जी इधर छोटा सा बाज़ार है, ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। मोटी से याद आया, मेरी छोटी बहन ज़रा मोटी अकल की है। आप मेरे घर आओगे तो इसकी किसी बात का बुरा ना मानना। ऐसी ही गुफ्तगू करता था और मुसलसल करता था। भाई खादिम हुसैन का घर कितनी दूर है? अब्बा ने उकता कर पीनो खाला के शौहर का नाम लिया। दूर की क्या कही, लो बस आ गया जैसे कि। वैसे चाचा खादिम हुसैन वाकई बड़ा अच्छा बंदा है। पिछले साल हमारी पानी की बारी पर लड़ाई हुई थी, डांग सोटे निकल आए थे, नंबरदार ने बीच बचाव करा दिया। वो समझ नहीं सके इस बात से खादिम हुसैन की अच्छाई किस तरह साबित होती है, लेकिन इससे वजाहत तलब करने की गलती कोई ना कर सका। फिर खाला का घर आ गया। यहाँ से वहाँ तक पक्की चार दीवारी, लकड़ी का बड़ा सा पुराना बदरंग फाटक और खुले फाटक से झांकता कच्चा सहन। वो सब जल्दी जल्दी कार से बाहर निकले। ओ चाचा खादिम हुसैन जी। साथ आए इस नौजवान ने कुछ अजीब अंदाज में आवाज़ लगाई, जिसे सुनकर पीनो खाला के छोटे साहबजादे ने एंट्री दी। मेहमानों को देखकर बाछें फैलाई। आए जवान का शुक्रिया अदा किया, कार से सामान घसीटा और उन्हें लेकर फाटक से अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाती सबसे पहले मुलाकात यहाँ वहाँ बंधे जानवरों से हुई। फिर एक और दरवाज़ा दिखाई दिया, जिससे अंदर दाखिल हुए तो साफ़ सुथरा सहन और लंबा बरामदा। इससे आगे कतार में चंद कमरे दिखाई दिए। सबसे पहले जो चीज़ नज़र में आई वो सफाई थी। कच्चे सहन की मिट्टी पर पानी का छिड़काव यकीनन बाकायदगी से किया जाता था कि वह सीमेंट के पक्के फर्श की तरह मजबूत और सख्त था। उनके दाखिल होते एक तरफ से खाला, दूसरी तरफ से उनकी 2 अदद बेटियाँ और 1 अदद बहू बरामद हुई और इन्हें घेरे में ले लिया। मिलने मिलाने का प्रोग्राम खासा लंबा हो गया। फिर इन्हें एक बड़े कमरे में ले जाया गया। क्या मजबूत किस्म की कुर्सियाँ और भारी पाइयों वाली मेज़ें थीं, और एक अदद पलंग भी बिछा था, वो भी भारी भरकम दिखाई दे रहा था। फिर जो चाय पेश की गई, बस दूध में पत्ती और सब्ज़ इलायची डाली गई थी, साथ ही उबले हुए अंडे, सूजी की मिठाई। वाह, मज़े ही हो गए। दिल ही दिल में खुश बज़ाहिर ये सब मतानत से बैठे थे। रास्ते में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, सफ़र तो खैरियत से गुज़रा। ये जो लड़का आपको लेकर आया है, इसका नाम निसार अली है। बड़ा ही अच्छा लड़का है, हालांकि इसका बाप बड़ा ही फसादी बंदा था। यही मुंडा नानकों पे पड़ा है, माँ की तरह बीबा है। चाचा खादिम हुसैन अब्बा की बराबर वाली कुर्सी पर बैठ चुके थे। गुफ्तगू का आगाज़ निसार अली से हुआ। इसके बाद घर के चेदा चेदा अफराद का तारुफ करवाया गया। इन्हें आज पता चला खाला पीनों के 2 गबरू जवान पुत्र भी थे, ऊंचे लंबे सेहतमंद। बड़े वाले की शादी हो चुकी थी, इसकी बीवी का नाम फाखरा था। दूसरे वाला भी कमारा था, इसका नाम खादिम हुसैन ने सरवर बताया था। सरवर बाकी सब की तरह मेहमानों के पास बैठा नहीं, सलाम किया और चल पड़ा। कहाँ चल पड़े हो भाई? वो अब्बा चौपाल तक जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। आहो, जैसे मुझे तेरा पता नहीं। और वो बाहर निकल गया। इन 2 भाइयों से छोटी 2 बहनें थीं। बड़ी वाली मुमताज़ उर्फ ताजी और छोटी वाली सुरैया उर्फ नन्नी थी। वैसे वो सिर्फ नाम की नन्नी थी, 17-18 के करीब तो ज़रूर होगी। फिर सेहतमंद भी खूब थी। इसके मुकाबले में ताजी दुबली पतली साफ़ रंगत की मालिक थी। चेहरे के नकोश भी जाजिब नज़र थे। और कुड़ियो,
कुछ मेहमानों के खाने पीने की भी फ़िक्र करो। ये क्या सारी की सारी घेरा डाल के बैठ गई हो? और नहीं भाई खादिम हुसैन, अभी कोई भूख नहीं लग रही, बस ज़रा मुँह हाथ धोकर फ्रेश होंगे। सुबह पानी के चंद छपाके मुंह पे मारकर तौलिए से पहुंचकर फारिग होने वाले अब्बा आज दोबारा मुंह धोने को बेचैन थे। इन्हें गुसल खाने की राह दिखा दी गई। गुसल खाना अच्छा बड़ा सा साफ़ सुथरा था और यहाँ पानी का टब मौजूद था कि पानी हैंड पंप से भरा जाता था और हैंड पंप सहन में एक तरफ लगा हुआ था। सब ने ही लक्स साबुन से रगड़ रगड़ के मुँह धोए, बालों में ब्रश किया और फिर बड़े कमरे में आ बैठे। खाना तैयार था, मुर्ग का सालन, तंदूर की रोटियां और मीठे की जगह पर कुछ मौसमी फल। ये तो बिरयानी, कबाब, कोफ्ते, मीठे में खीर, कस्टर्ड की तवक्को कर रहे थे, मगर खैर भुना हुआ मुर्ग भी बुरा नहीं था। रायता खाने का मज़ा आ गया और खाने के बाद जो चाय आई वो भी मज़ेदार सी थी। बातों में शाम हो गई और ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। लो भाई, उधर तो गाने शुरू भी हो गए। हम तो अभी तक तैयार ही नहीं हुए। ताजी, नन्नी और अम्मी की भाभी उजलत में उठी और इन्हें भी तैयार होने को कहा। तैयार होने के बाद ये सब एक सी ही लग रही थी। हाँ, फ़र्क था तो ये कि ताजी और इसकी बहन भाभी के कपड़ों पर बड़ी खूबसूरत कढ़ाई हुई थी जो उन्होंने ख़ुद की थी, ऐसी महारत से कि ये लोग तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकें। शादी का घर ज़्यादा दूर नहीं था। रहमत खाला जो उनके यहाँ शहर में पीनू खाला के साथ आई थी, बड़ी मोहब्बत से मिली और उनके लिए ख़ास आगे जगह बनवाई। खूब ही रश था। लगता था सारा गांव इकट्ठा किया गया है। लड़कियां बारी बारी ढोलक बजाती थीं और बड़ी महारत से बजाती थीं। मेहंदी की रस्में भी वही थीं जो शहर में देखी जाती थीं। हाँ, फ़र्क था तो इतना कि लड़के वाले मेहंदी लेकर नहीं आए थे। लड़कियों ने डेक लगाकर डांस भी किए, लुड्डी भी डाली गई और हंसी मजाक भी जारी रहा। इसके बाद खाना लगाया गया। खाने में गुड़ वाले मीठे चावल रखे गए थे, खूब बादाम डाले गए थे, इसलिए खाने में मज़ा आ गया। तकरीब शहर की तरह 1-2 बजे तक नहीं चली, बल्कि इधर रात के 10 बजे, उधर उन्होंने अपने अपने घर की राह ली। हाय, बाहर तो बड़ा ही अंधेरा है। बाहर निकलकर जब गांव में तारीकी का राज देखा तो ये डर गई। अरे अपना पिंड है, यहाँ सब अपने हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ताजी ने हंसकर तसल्ली दी। फिर बातों में वाकई रास्ता कटने का पता नहीं चला। आज की तकरीब खालिस औरतों के लिए थी। मर्द घर पर थे। जब ये लोग घर पहुंची तो वो सो रहे थे। खाला पीनू घर पर ही रुक गई थी। बता रही थी सबको खाना, फिर चाय बनाकर दे दी थी। अब सर्वर के इंतज़ार में जाग रही हूँ, अभी तक नहीं आया। तुम सो जाओ अम्मा, जब भाई आएगा मैं खाना निकाल दूँगी। और ये तुम्हारे लिए मासी रहमतें ने मीठे चावल भेजे, गरम गरम है, अभी खा लो। ताजी ने हाथ में पकड़ा बर्तन माँ की जाने बढ़ा दिया। वो चावल प्लेट में निकाल कर कमरे में ले गई। सर्वर के इंतज़ार में जागने की ड्यूटी अब ताजी की थी। नींद तो नसीमों को भी नहीं आ रही थी। वो भी ताई जी के पास इस खुले से हवादार बावर्ची खाने में आ बैठी। ताजी बर्तन समेट रही थी और वो सोच रही थी, इसमें हमारे घर के 3 किचन निकल सकते हैं। तुम सो जाती नसीमा, सफ़र से आई हो, थकी हुई होगी। नहीं ताजी, मुझे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है। और मेरा तो ख्याल था मेहंदी की तकरीब है, आधी रात तो गुजर ही जाएगी इसमें। अगर लड़के की शादी हो फिर ज़्यादा धूम धड़क्का होता है। दूल्हा के दोस्त नाचते भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, रस्में भी बहुत होती हैं। लेकिन लड़की की मेहंदी ज़्यादा जोश व खरोश से नहीं की जाती। तुम्हें मज़ा नहीं है? शहर में तो बहुत रौनक लगती होगी। ताजी को शर्मिंदा सी होकर कह रही थी। हाँ, शहर में तो क्या बताऊँ कैसी रौनक होती है। इसने कुछ मुबालगा किया, वरना गुर्बत के अजाब में गिरफ्तार इस क्लास के यहाँ रौनकें तो मफकूद होती जा रही हैं। अभी बातें हो ही रही थीं कि सर्वर आ गया। जल्दी खाना लाओ, सख्त भूख लगी है। इतना कहकर सामने बने कमरे में घुस गया। बंदा पूछे सख्त भूख लगी है तो जल्दी आ जाते, अब क्यों शोर मचा रहे हो? इसने सोचा, बोली कुछ नहीं। ताजी ने इसके लिए खाना निकाला, गर्म किया। गुड़ वाले चावल भी कुछ मौजूद थे, वो भी प्लेट में रख लिए और इसके कमरे में चली गई। जब वो वापस आई तो नसीमा सोने के लिए उठ खड़ी हुई। सुबह का नाश्ता इतना सवेरे कि अभी हल्का अंधेरा बाकी था। ये लोग तो स्कूल टाइम से बमुश्किल आधा घंटा पहले उठने और जल्दी जल्दी रात की बची रोटी खाने और स्कूल की राह लेने के आदी थे। मगर जब देसी घी में तले हुए अंडे, गरम गरम पराठे और मक्खन सामने हो, नींद को भगाना कहाँ मुश्किल होता है। वाह, ज़िंदगी तो गांव वालों की है। हमारे घर में अगर अंडे आ जाएं
تو کیسے گن گن کر استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں ہر چیز کتنی وافر مقدار میں ہے۔ اس نے پراٹھے کا مزہ لیتے بے ساختہ سوچا تھا۔ مکھن کی پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت سرور کمرے میں داخل ہوا۔ اماں میرے کپڑے نہیں دھلوائے تھے؟ بہت خفا انداز میں پوچھ رہا تھا۔ دھلوائے کیوں نہیں تھے پتر، وہ تو استری بھی ہو چکے۔ فاخرہ یہ تاجی سے بول، تجھے نکال کر دے دیتی ہیں۔ اور وہ واپس پلٹ گیا۔ بڑا ہی ذمہ دار پتر ہے میرا، اب دیکھ لو، شادی تو رحمتے کی دھی کی ہے، پھرکی کی طرح یہ گھوم رہا ہے۔ کتنے ہی کام ہیں جو اس نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیے ہیں۔ خالہ بیٹے کی تعریفیں کر رہی تھیں اور نسیمہ کو یہ سب سننا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ بارات دوپہر میں آ رہی تھی اور گاؤں میں یہی رواج تھا، اسی لیے سب ناشتے کے بعد جلدی جلدی تیار ہونے لگے۔ ایک ہینڈ پمپ تھا اور اس کے گرد خوب رش لگا ہوا تھا۔ سبھی کو رگڑ رگڑ کے منہ دھونے کے بعد تیار ہونا تھا۔ ہاں، سرور تو ناشتہ کرتے ہی نکل گیا تھا۔ اونچے اونچے کچے راستوں پر اونچی ہیل کی جوتی پہن کر چلنا کتنا مشکل ہے۔ اس کا تجربہ کل بھی نسیمہ کو ہوا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، اس کے پاس تو یہی ایک فینسی جوتی تھی۔ رحمتے کے گھر تک انہیں پیدل جانا تھا۔ راستے کی دھول مٹی سے پیروں کا ستیہ ناش ہو رہا تھا اور اسے پیروں سے زیادہ جوتی کی فکر تھی۔ اماں سے کتنی ضد کرنے اور ڈانٹ کھانے کے بعد تو یہ جوتی خریدی تھی۔ سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتی، باقی سب سے کچھ پیچھے رہ گئی۔ چھوٹی بہن نے ایک دو بار ٹوکا بھی، تیز چلنے کو کہا۔ جواب میں اس نے ڈانٹ کر کہہ دیا، راستہ آتا ہے مجھے، تم پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کے بجائے راستہ دیکھ کر چلو، ایسا نہ ہو کہ گر پڑو اور جیسا حال پیروں کا ہو رہا ہے ویسے ہی تمہارے منہ کا بھی ہو جائے۔ پھر وہ سب کافی آگے نکل گئے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ دور لیکن بالکل سیدھ میں ٹینٹ لگے ہوئے تو یہاں سے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ چلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، گاڑی منگوا دوں؟ موٹر سائیکل اس سے ذرا آگے جا کر رکی اور سوار مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ٹھٹک کر اس نے سر اٹھایا۔ سرور کو دیکھ کر کچھ سمٹ سی گئی۔ پتہ ہے مجھے، شہری لڑکی ہو، دھول مٹی سے الرجک۔ پتہ نہیں وہ طنز کر رہا تھا یا یہ کہ خواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ جلدی جلدی قدم اٹھاؤ، آگے بہت سے لڑکے کھڑے ہیں، بارات آنے میں تو دیر ہے، سب تمہاری طرف ہی متوجہ ہو جائیں گے۔ کیسے تیز چلوں، اونچے نیچے تو راستے۔ وہ بول ہی پڑی، بیٹھ جاؤ، چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ نہیں نہیں، ایک دم سے بولی تو سرور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ یہی موٹر سائیکل روک کے کھڑا رہا یہاں تک کہ نسیمہ چلتی ہوئی ٹینٹ کے قریب پہنچ گئی۔ فنکشن اچھا رہا۔ گھر پری شہر سے آئی ایک کزن نے دلہن کو تیار کیا۔ دولہا صاحب کالے کلوٹے سڑیل مزاج کے تھے۔ جب اس کا اظہار تاجی سے کیا تو وہ ہنس کر بولی، گاؤں کے دولہے سڑیل مزاج بن کر آتے ہیں تاکہ سسرال پر روب پڑے۔ بڑی عجیب بات ہے، نئی رشتہ داری بنی ہے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس نے حیرت سے خیالات کا اظہار کیا۔ تاجی صرف اس بات میں سر ہلا کے رہ گئی۔ دودھ پلائی کی رسم ہونے والی تھی۔ خالہ رحمتے کی چھوٹی بیٹی تاجی کو بلا رہی تھی۔ وہ اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں جی، یہ پاؤ بھر پانی ملا دودھ جو پتہ نہیں کیوں ضد کر کے پلایا جا رہا ہے، اس کا کیا لیں گے بے ایمان گنوار؟ ایک لڑکا جو اپنے لباس و شکل و صورت سے شہری لگتا تھا، دولہا کے قریب کھڑا ان لڑکیوں سے پوچھ رہا تھا، غریب ہو گئے تم؟ سب نے برا مان کر کورس کے انداز میں کہا، ہاں جی، ہم تو غریب ہی ہیں، اسی لیے 100 روپے سے زیادہ تو نہیں دے سکتے۔ جھٹ سے کہا گیا تو لڑکیاں شور کرنے لگیں۔ سڑیل شکل والے دولہا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تو اس کی بڑی بہن جھٹ مجمع کو چیرتی اس کے قریب پہنچی، کان میں کچھ کہا، جس کے نتیجے میں دولہا صاحب پھر سے لب بھینچ کر بیٹھ گئے۔ فٹے منہ چڑیل، یہ ہے ہی فسادن۔ بزرگ خواتین نے دولہا کی بہن کی اس حرکت پر تبصرہ فرمایا۔ اسٹیج پر دودھ پلائی کی رسم عروج پر تھی۔ نسیمہ تماشا دیکھنے کے لیے کرسی پر چڑھ گئی کہ اتنے رش میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیچھے سے ایک ریلا آیا، اس کی کرسی کو دھکا لگا اور اس سے پہلے کرسی سمیت زمین بوس ہو کر پیروں والا ہاتھ چہرے کا بنا لیتی کسی مہربان نے تھام لیا۔ ہائے اللہ، اس سے تو اچھا تھا نیچے گر ہی جاتی۔ سرور کے بازوں میں خود کو دیکھا، چہرہ مارے شرم کے سرخ ہو گیا۔ سرور بھی اس لمحے کے اثر میں کچھ ایسا آیا کہ پھر ساری تقریب میں اس کی نظریں اس پر ہی بھٹکتی رہیں۔ دیکھو جی،
ہم کرائے کے لوگوں سے بات نہیں کرتے، ہمیں دولہا سے بات کرنے دو، تاجی شہری لڑکے کو کہہ رہی تھی۔ بھائی کرائے کے لوگ دولہا سے براہ راست کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس نے بھی جتایا۔ ہم کیوں ہونے لگے؟ ہم تو دلہن کی بچپن کی سہیلیاں ہیں، اس نے وضاحت کی۔ جی تو چاہتا ہوگا سہیلی جس دیس جا رہی ہے ہم بھی چلیں تاکہ بچپن کا پیار سلامت رہے، میں نے خیز انداز میں کہا تو لڑکے والے ہنسنے لگے۔ ہائے نہ، یہ کیا مداری لے آئے ہو بارات میں؟ باندریوں کو قابو کرنے کے لیے ضرورت جو تھی پھر کہہ تاجی لاجواب سے ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ رسم کے بعد وہ لڑکا اپنے ساتھ شہر سے آئی اپنی بڑی باجی کو تاجی کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ باجی جان بھی کافی مسکرا رہی تھی۔ یہ تقریب جب دلہن کی رخصتی کے ساتھ اختتام کو پہنچی، دوپہر کب کی گہری شام میں ڈھل چکی تھی۔ ہے اللہ، ایک اور مصیبت، اندھیرا بھی ہو رہا ہے، اب تو چلنے میں اور بھی مشکل پڑے گی۔ نسیمہ نے دہائی دی اور اسی وقت ایک گاڑی قریب آ کر رکی جیسے سرور ڈرائیو کر رہا تھا۔ نسیمہ کی اماں سے بولا، خالہ جی چلو آپ لوگ گاڑی میں بیٹھو، گاؤں کے اونچے نیچے کچے راستے ہیں، بھلا کہاں آدھی ہیں آپ؟ اور اماں نے بھی دیر نہیں لگائی۔ حامد اور ابا تو سرور کے بڑے بھائی اور والد کے ساتھ پہلے ہی گھر جا چکے تھے۔ اماں تینوں بیٹیوں اور خالہ پینوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں، راستے میں شادی پر ہی تبصرے ہوتے رہے۔ دونوں خواتین اور سرور بولتے رہے، یہ تینوں خاموش بیٹھی رہیں۔ گاڑی گھر کے پھاٹک پر رکی، اماں، خالہ اور بہنیں اتریں۔ وہ اترنے لگی تو سرور نے شوخی سے کہا، آج کی تقریب میرے لیے تو بڑی ہی یادگار بن گئی ہے۔ کرسی سے گرنے والا سین یاد کر کے وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گئی۔ ہائے اللہ، میں تو سمجھتی تھی گاؤں کے لڑکے بڑے سیدھے سے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ سرور شوخ بھی ہے اور خوبرو بھی، ذمہ دار بھی کتنا ہے، اس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو ایک مرد میں ہونی چاہیے۔ اگلے روز شام کو ان لوگوں کی واپسی تھی، لیکن سرور نے تاجی سے کچھ ایسا کہا کہ وہ اسے روکنے کی ضد کرنے لگی۔ خالہ پینو ہی بولی، مجھے چند روز تک شہر آنا ہے، میں اسے ساتھ لیتی آؤں گی۔ اماں نے اس کی مرضی پوچھی تو وہ بھی ابھی گاؤں میں رکنا چاہ رہی تھی کہ ان 2-3 روز میں دیکھا ہی کچھ نہیں تھا سوائے شادی کی تقریب اور اس کی تیاریوں کے۔ اب وہ گاؤں کی سیر کرنا چاہتی تھی، باغوں سے تازہ پھل اور کھیتوں سے ہری بھری سبزیاں توڑنے کا مزہ لینا چاہتی تھی۔ امی ابا بھائی بہن چلے گئے، تاجی نے اس کا بستر اپنے کمرے میں لگا لیا۔ تاجی سے چھوٹی ننی بھی یہیں سوتی تھی، دونوں بہنیں اسے ادھر ادھر کے قصے سناتی رہیں۔ پھر فاخرہ بھنڈی کی بھجیا کے ساتھ گرم دیسی گندم کی روٹی لے آئی۔ ارے واہ، اس موسم میں بھنڈیاں! وہ خوش ہو گئی۔ یہ بھائی سرور کے کام میں نئے نئے تجربے کرتا رہتا ہے، ننی نے بتایا۔ فاخرہ بھابھی کھانا رکھ کر پلٹ گئی۔ تینوں نے کھانا کھایا، پھر تاجی برتن لے کر چلی گئی۔ واپسی کافی دیر سے ہوئی۔ رات کو سارے برتن دھو کر خشک کر کے الماری میں رکھ دیے جاتے ہیں، ایسے ہی رکھ دیں تو بلی منہ ڈال جاتی ہے۔ تم لوگ باورچی خانے کو دروازہ کیوں نہیں لگواتے؟ بس رواج نہیں ہے، اور اگر لگا بھی لیں تو بھی برتن تو دھونے ہی ہیں، یہاں چوہے بہت ہیں، بلی کے ڈر سے باورچی خانے میں رکھا آٹا چاول خراب ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اگر جو بلی نہ آئے تو پھر تو یہ بے فکر ہو کر گھومے پھریں گے۔ صبح ہم کھیتوں میں چلیں گے نا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ دیکھو اگر کام زیادہ ہوئے تو پھر پرسوں پر اٹھا رکھیں گے، ابھی تو تم 3-4 روز تک یہیں ہو نا؟ اسے مایوسی ہوئی، وہ گھومنے پھرنے کے لیے ہی تو رکی تھی۔ صبح اسے خالہ پینو اپنے ملنے والوں کے گھروں میں لے گئیں، ایک کے بعد دوسرا گھر کرتے کرتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو روٹی بھی ایک گھر میں ہی کھائی گئی۔ بے ذائقہ سی دال، نہ مسالے نہ گھی، ذرا مزہ نہیں آیا، پر خالہ کی تو لگتا تھا اس غریب سی عورت سے خوب ہی دوستی ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شام کو وہ گھر آئی تو خاصی تھکی ہوئی تھی۔ سرور نے اس کی شکل دیکھتے ہی ہنس کر ماں سے کہا، ارے اماں، اسے تمہاری سہیلیوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، خواہ مخواہ اس کا دن برباد کیا۔ اور نسیمہ نے سوچا، ارے یہ تو میرے دل کی بات بولتا ہے۔ بھائی روایت ہے گاؤں کی، ایک کا مہمان سب کا مہمان ہوتا ہے۔ ہاں اماں یہ تو ہے، پر دیکھ بیچاری کتنا تھک گئی ہے۔ تب ماں نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ ہائے، تو بیٹھے بیٹھے ہی تھک گئی؟ اور نسیمہ شرمندہ ہو گئی۔ صحن میں بہت سی چارپائیوں پر دھلی ہوئی گندم خشک ہونے کے لیے چادروں پر پھیلائی گئی تھی۔ اب رات اتر رہی تھی تو ننی اور فاخرہ چارپائیاں برآمدے میں کر رہی تھیں۔ تاجی شاید باورچی خانے میں مصروف تھی، وہ بھی ادھر ہی چلی آئی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟
इसे बड़ी सी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर ढेरों ढेर कुछ बनाते देखकर इसे हैरत हुई। अब्बा जी बादाम का हलवा बनवाते हैं, वही बना रही हूँ। बादाम का हलवा? मुंह में पानी आ गया। हाँ अब्बा जी, इधर घर में थोड़ी बहुत हिकमत भी करते हैं ना। उन्होंने कुछ लोगों के लिए बनवाया। जोश झाग की तरह बैठ गया। इतने में नन्ही सर पर एक बड़ा सा गट्ठड़ उठाए चली आई। अरे ये क्या है? वो डर कर पीछे हटी, कहीं ये गठरी इस पर ना आ गिरे। इसमें लहसुन है। नन्ही ने बड़े से बावर्ची खाने की एक तरफ ये रख दिया। इतना सारा? वो हैरान हुई। हाँ, हम लोग कई महीने का सामान इकट्ठा ही डाल लेते हैं। अनाज है तो साल भर का, लहसुन प्याज अदरक 2-3 महीने की इकट्ठी, और दालें भी अक्सर साल 6 महीने की ख़रीद ली जाती हैं। और इसे अपना घर याद आ गया। कभी कभार महीने भर का सौदा इकट्ठा ख़रीदने की नौबत आती थी, वरना सब कुछ ज़रा ज़रा से शॉपरों में ही आया करता था। ताजी ज़रा जल्दी से 6 कप चाय बनाकर बैठक में भेज दो, साथ में कुछ रख भी देना, खाली चाय ही ना भिजवा देना, सरवर ने झांक कर कहा और चला गया। ताजी झट से हलवा चूल्हे से हटाकर चाय बनाने लगी। फिर अलमारी से सूजी निकाली, दूसरे चूल्हे में आग जलाई और सूजी भूनने की तैयारी शुरू कर दी। वो बड़ी तेज़ी से ये काम कर रही थी। नसीमा को यूँ दिलचस्पी से देखते पाया तो बोली, अब तो बड़ी आसानी हो गई है, गैस के सिलेंडर आ गए, वरना पहले हम सारा काम लकड़ी जलाकर करते थे। ताजी अब्बा जी और तेरे बड़े भाई भी चाय के लिए कह रहे हैं। जब चाय तकरीबन तैयार थी तो फाखरा ने आकर कहा। ताजी ने झट दूध पत्ती और चीनी बढ़ा दी। ताजी चूल्हा फारिग हो तो बता देना, अम्मा को भूख लगी है, रोटी डालनी है। फाखरा ने फिर एंट्री दी। आज क्या पकाया है? नसीमा से पूछने लगी। आलू मेथी और गाजरें, इसने अपने काम में मसरूफ़ जवाब दिया। हाय, इधर भी गोश्त कम ही पकता है। सर झटका, शादी पर गोश्त क्या कम खाए जो फिर दिल चाह रहा है। इतने में फिर फाखरा चली आई। आटे की परात साइड से उठाकर सामने रखी, ढेरों ढेर गुंधा हुआ आटा। नसीमा को हैरत हुई, फिर सोचा शायद ये इकट्ठा कई दिन का गूंद लेती होंगी। नन्ही से लेकर अंदर खाला पीनों के पास आ गई, हालांकि वो अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद ताजी इसके लिए भी चाय और गर्म सूजी का हलवा ले आई। सूंधी सूंधी खुशबू हर तरफ फैल गई और वो रग़बत से खाने लगी। रात को खाना खाकर ही जल्दी सो गई। रात को आँख खुल गई। हर सो अंधेरे का राज था। नाइट बल्ब शायद ताजी ऑन करना भूल गई थी, और इसे तो घुप अंधेरे से बड़ा ही डर लगता था। घबराकर ताजी को आवाज़ दी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, लाइट चली गई है, सो जाओ। मुझे अंधेरे में डर लगता है, इसने बेबसी से कहा। ताजी टटोल कर उठी और खिड़की खोल दी। शायद 14वीं की रात थी। सामने रोशनी बखेरता गोल चांद इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था कि नसीमा बस देखे गई। इतना चमकदार चांद शहरों में भला कहाँ देखना नसीब होता है। इसकी रोशनी से तो कमरा भर गया था। वो डर भूल गई थी। ताजी सो गई। वो कितनी देर चांदनी के शहर में खोई रही, पता नहीं चला कब नींद आ गई। सुबह नन्ही ने इसे जगाया और इसने देखा इसके बिस्तर के अलावा बाकी सब बिस्तर सलीके से बिछा दिए गए हैं। ऊपर लेने वाले खेस उठा दिए गए हैं। कमरा बहुत साफ़ सुथरा है। मैं तो बहुत देर सोती रही। वो शर्मिंदा होकर बिस्तर से उतरी और बोली, तो क्या हुआ भाई, तुम हमारी मेहमान हो। वैसे अब उठ जाओ, नमाज का वक्त तंग हो रहा है। मैंने पानी का टब भर दिया, जाकर वज़ू कर लो। और इसे बिस्तर छोड़ना पड़ा। अभी अंधेरा था और खुनकी भी बहुत हो रही थी। वज़ू करके वो कमरे में आके नमाज अदा की और नन्ही से बोली, कोई गर्म शॉल या स्वेटर हो तो मुझे दे दो, सर्दी हो रही है। अरे, नन्ही ने इसकी बात पर हैरत से इसे देखा, फिर बोली, स्वेटर शालें तो सब स्टोर में पेटी में रखी है, अभी मौसम ही कहाँ है। नन्ही, अम्मा कह रही हैं डब्बे से अंडे निकाल लो। सरवर ने कमरे के दरवाजे में खड़े होकर अम्मा का पैगाम नन्ही को दिया। भाई, तुम्हारी कोई गर्म चादर बाहर है या सब पेटी में रखी गई हैं? नन्ही से पूछने लगी। फिर ये भी बता दिया कि नसीमा को सर्दी लग रही है। तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं हो रहा। वो कमरे में आ गया और वो तो गर्म कपड़े का तकाजा करके ही पछताई। अब क्या बताती, तंग गलियों में छोटे छोटे मकानों के मकीन। हम लोग तुम्हारी तरह सेहतमंद नहीं हैं, ज़रा सी गर्मी ज़रा सी सर्दी से मुतासिर हो जाते हैं। नन्ही इसके बताने पर कमरे की अलमारी से एक बड़ी सी गर्म चादर उठा लाई और इसका खेस भी तय करके रख दिया। वो चादर को अच्छी तरह लपेट कर बैठ गई। अरे उधर बावर्ची खाने में आ जाओ ना, नाश्ता तैयार हो रहा है। नन्ही ने ऑफ़र की, लेकिन इसका जी नहीं चाह रहा था।
वो तो बिस्तर पर लेटकर दोबारा सोना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। यहाँ तो सब सुबह सुबह बेदार होने के आदी थे। थोड़ी देर के बाद नाश्ता भी कर लिया क्या, बर्तन भी धुल गए और अब लड़कियाँ घर की सफाई में लग गई थी। ताजी आज खेतों पर चलेंगे ना, इसने पूछा था। हाँ हाँ, मैंने भाई सरवर से बात की है, कह रहा था नसीमा को सारा गांव दिखाना। हम नहर पर भी जाएंगे। वो इसके शौक़ को मज़ीद बढ़ा रही थी। सुबह अच्छी खासी खुनकी थी और दिन के 10 बजे जब ये घर से निकली तो अच्छी खासी तपिश थी। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। नन्नी और ताजी इसके साथ थी। खाला रहमते के घर के सामने गाड़ी आकर रुकी थी। लगता है शहनाज महके आई है। लड़कियों ने खाला रहमत की बेटी का नाम लिया और इश्तियाक से उसी जानिब चलती। इसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, वो तो खेत और बाग देखना चाहती थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। उनके पीछे ओली वाकई आने वाली शहनाज, इसका दूल्हा और वही शहरी दोस्त था। ताजी ने जो ही इस लड़के को देखा ठिठक कर रुक गई और वो भी इसे देख चुका था और बोला, अस्सलाम वालेकुम। लगता है आपको हमारे आने की खबर थी, तभी इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। शहजाद भाई, ये मेरी बड़ी प्यारी सहेली मुमताज़ है। हम इसे ताजी कहते हैं, प्यार से। प्यार से? अच्छा, तो फिर मैं भी ताजी ही कहूँगा। और ताजी का चेहरा गुलाबी हो गया। आज तो बोल ही नहीं रही, उस रोज़ क्या ज़ुबान किराए पर ली थी। हटो भी शहजाद भाई। फिर ताजी से बोली, बुरा ना मानना, इनकी आदत है हंसी मजाक की। उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, शहर से आए हैं। अब शहनाज ताजी के बराबर चलती हौले हौले बता रही थी, तुम खुश तो हो ना? नन्नी ने दुल्हनों से किए जाने वाला रिवायती सवाल कर डाला। हाँ हाँ, बहुत सारी बड़े अच्छे हैं। और वो तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि क्या बताऊँ। तुम चलो ना हमारे साथ, घर बैठकर बातें करते हैं। बड़े किस्से हैं मेरे पास तुम सहेलियों को सुनाने के लिए। हाय अल्लाह, मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी तो है ही शादी के बाद। आज ये मुझे 2 रोज़ के लिए मैके छोड़कर चले जाएंगे। ना मेरा जी मान रहा है ना उनका, पर यह रस्म है, मजबूरी है ना। शहनाज ने आह भरी। नी, माँ बाप बहन भाई सबकी मोहब्बत भूल गई? ताजी ने लताड़ा। ये मियाँ बीवी की मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, तुम्हारी शादी होगी ना तब पता चलेगा। ना मेरा दिल ऐसा सख्त नहीं है, जीती हूँ अपने घर वालों को देखकर। ताजी ने मुंह बनाया। ये देखो, ये अंगूठी दी है उन्होंने मुझे। हाथ एक फ़ख्र से उसके सामने किया। हाय, हाथ की तीसरी उंगली में बड़े पुराने से डिज़ाइन की हल्की सी अंगूठी की तरफ इशारा किया। ये तीनों चुप रहीं। कहते हैं तुझे सोने में पीला कर दूंगा। अगले हफ्ते हम शहजाद भाई के साथ उनके शहर जा रहे हैं। इतरा कर लड़कियों की जानिब देखा। अच्छा, कितने दिन के लिए? अब के ताजी ने इश्तियाक से पूछा। हफ्ता रहेंगे, किसी को बताना ना। उनकी अम्मा तो कह रही हैं 2 रोज़ बाद वापस आ जाना, पर ये कहते हैं 1 हफ्ता लगा कर ही आएंगे। ऐसे मौके कोई बार बार थोड़े ही आते हैं। हमारा वहाँ होटल में खाना खाने का भी प्रोग्राम है और मैंने इनसे कहा है, मुझे बाल कटाने का बड़ा ही शौक़ है। शहर के किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर में जाकर बाल सेट करवा के आऊँगी। ये मेरा सूट देख रही हो, ये भी शहजाद भाई की बहन शहर से लाई थी। कैसा सोहना काम हुआ इस पर। ताजी और नन्नी ने भी तारीफ़ कर दी। वो चुप थी। शहनाज की ज़ुबान जिस रफ्तार से चल रही थी, लगता था आज का दिन इसी के साथ ही बर्बाद हो जाएगा। और ताजी को तो शहजाद नज़र आ गया था। वाकई आज का दिन शहनाज के घर गुजारने का इरादा कर चुकी थी। शहनाज की छोटी बहनें अभी काफ़ी छोटी थीं। खाला रहमते ही चूल्हे के आगे बैठी थीं। ताजी ने जाते ही यह काम अपने ज़िम्मे ले लिया। घर में शहनाज की आमद की इत्तला पाकर काफ़ी आस पड़ोस इकट्ठा हो गया था। करीबी रिश्तेदार तो अभी अपने अपने घरों को गए ही नहीं थे, सो काफ़ी रौनक लगी थी। शहनाज भी बावर्ची खाने में बैठी थी। अतराफ़ में सहेलियों का झुरमट था और वो लहक लहक कर अपने किस्से सुनाने में लगी हुई थी, जिनमें नसीमा के सिवा सबको बड़ी दिलचस्पी थी। इस अरसे में कभी चाय रखने के बहाने, कभी बर्तन उठाने के लिए ताजी मेहमानों के पास 2-3 चक्कर लगा चुकी थी। दोपहर के खाने में खीर, भुना हुआ मुर्ग, तंदूरी पराठे शामिल थे। खाने के बाद ताजी ने बर्तन समेटे, एक बार फिर चाय का पूछने के लिए चली गई। उधर से जवाब इस बात में मिला तो फिर मसरूफ़ हो गई। बस भी करो ताजी, मैं तो बैठे बैठे थक गई हूँ, इसने धीरे से कहा। हाँ, अब तो वक्त भी काफ़ी हो रहा है, चलते हैं। ताजी को भी ख्याल आ गया। फिर भी वापस होते होते मज़ीद 2 घंटे लग गए।
अब कहाँ के खेत, शाम हो रही थी, इन्हें घर ही वापस आना था। अपने घर में होती तो इस बात पर गुस्सा करके खूब बोलती। अब इन्हें क्या कहती जो शहनाज से मुलाकात पर और इसकी बातें सुनकर बहुत खुश थी। सारा रास्ता ही किस्से दोहराती और हंसती रही। ये बराबर में खामोश बेजार चलती रही। घर आती सबसे पहले मुलाकात बरामदे में बैठे बंदूक साफ़ करते सरवर से हुई। हाँ जी, हो गई सैर, इसको देखते हुए पूछ रहा था। नहीं भाई, हम खेतों में ही नहीं गए, शहनाज आई है, आज हम उधर चले गए थे, बड़ा ही मज़ा आया। शहनाज आई है? लो, मुझे बताया ही नहीं, मैं जाकर मिल तो लेती। खाला पीनो तो जैसे तड़प ही उठी। अम्मा कल जाकर मिल लेना, इधर ही होगी, बड़ी खुश है, कहती है मियाँ बहुत अच्छा है। शुरू शुरू में सारे मियाँ अच्छे ही होते हैं, सारी लड़कियाँ खुश ही होती हैं। फ़ाखरा ने ज़ुबान खोली। खैर की गल कर, अल्लाह इसे सारी हयाती खुश ही रखे। और फ़ाखरा मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। हालांकि ताजी और नन्नी से शहनाज के सुनाई किस्से सुनाना चाहती थी, मगर इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। चलो अच्छा ही है, एक बार फिर वही बोर फजूल सी बातें सुनना पड़ती। तौबा, कैसे बन रही थी वो शहनाज बेगम। हालांकि दूल्हा ऐसा है कि एक के बाद दूसरी नज़र डालने को भी दिल नहीं करता। शायद इन गांव वालों के मियार ऐसे ही होते हैं। वो यहाँ बैठने के बजाय कमरे की जानिब चलती। पुत्तर नसीमा, आ हमारे पास बैठ, खाला पीनू ने पुकारा। खाला मैं ये कपड़े तब्दील कर लूँ? इसने बहाना बनाया। कपड़े तो नहीं बदले, जूती तब्दील करके वो इनके पास आने के बजाय बावर्ची खाने में फ़ाखरा के पास चली गई। लेकिन वापस होना पड़ा कि वो रात की हांडी के लिए ढेरों प्याज काट रही थी। प्याज काटना इसे बड़ा मुश्किल काम लगता था, आँखों में जलन बहुत होने लगती थी। निकुड़ियो, सिर्फ बातें ही ना बनाओ, गंदम खुश्क हो गई है, साफ़ करो, मैं चक्की पर आटा पीसने के लिए भिजवाऊँ। फिर खाला और दोनों लड़कियां गंदम साफ़ करने लगीं, जो कुछ दिनों से सहन में धोकर डाली गई थी। इतना ढेर था, तीनों को महारत हासिल थी। जल्दी जल्दी इसमें से कंकर चुन रही थी। नसीमा घर के सामने वाले अहाते में आ गई, जहाँ जानवर बंधे हुए थे। 2-3 मुर्गियाँ और बत्तखें खूब शोर मचा रही थीं। मोटी ताज़ी गाय जुगाली में मसरूफ़ थी, जबकि भैंस और बकरियाँ चारा खाने में मसरूफ़ थीं। सरवर कब इधर आया इसे पता ही नहीं चला। करीब आया तो वो अंदर जाने को वापस मुड़ी। हमसे तो जानवर ही अच्छे हैं, जिन्हें इतनी मोहब्बत से देखा जा रहा था। इसकी बात पर नसीमा को हंसी आ गई और बोली, ऐसे अच्छे जानवर शहर में कहाँ दिखाई देते हैं, जबकि लड़के वहाँ बहुत। नहीं भाई, ऐसे लड़के शहर छोड़ गांव में भी नहीं हैं, पूरे दावे से कह रहा हूँ, तुम भी ज़रा पूछो ना अपने दिल से। और नसीमा ने नज़रें झुका ली। दिल कह रहा था, सच कह रहा है, मैंने लड़ाका मुर्ग भी पाल रखा है, आओ दिखाऊं तुम्हें। पता है, सुबह सवेरे बादाम खिलाता हूँ इसे। हाय अल्लाह, इतनी फजूल खर्ची, मुर्गे पर बादाम ज़ाया कर रहे हैं। शौक़ है मेरा, और तुमने सुना होगा, शौक़ दा कोई मोल नहीं। और क्या क्या शौक़ है? घबराओ नहीं, सारे शौक़ शरीफाना ही हैं, तुम्हें परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ओहो, मेरा ही मतलब थोड़ा ही था। वो झेंप गई। अगले रोज़ वो ताजी और नन्नी के साथ खेतों में गई। जाने से पहले इसने फ़ाखरा भाभी को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने बताया, अभी कपड़े इस्त्री करने को रखे हैं, फिर तुम लोगों के आने से पहले हांडी भी चढ़ानी है, बस तुम लोग जाओ। ताजी और नन्नी ने घर से निकलने से पहले चादरें ओढ़ी थी। उनकी देखा देखी यहाँ आकर वो भी इसी तरह चादर ओढ़ने लगी थी, जिससे आधा चेहरा छुप जाता था। और इस बात पर खाला पीनू बहुत खुश होती थी। रास्ते में इसने गांव की निचली ज़ातों की गरीब लड़कियों और औरतों को देखा। फिल्मों और ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ, मौसमों की सख्ती सहने वाले बेरंग से चेहरे थे, उलझे बाल, खुरदरे हाथ पैर, कपड़े बेहद मैले और फटे पुराने। ये लोग सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती क्या? उसे घिन आ रही थी। तंदूर पर बैठी रोटियां लगाती, भट्टी में दाने भूनती और खेतों में काम करती औरतों को देखकर। आदी हैं ऐसी ही ज़िंदगी के, नन्नी ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम लोग पढ़ी लिखी हो, समझाती नहीं हो इन्हें। देखो ये तो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो रही हैं। छोड़ो इन्हें, इनकी यही ज़िंदगी है। तुम सैर करने आई हो खेतों की, ताजी ने याद दिलाया। वो बड़े शौक़ से आई थी, मगर यहाँ आकर कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। धूप तेज़ थी, खेतों में साए का नाम निशान नहीं था। फिर यहाँ से चलकर वो बाग में आ गई। ये माल्टों का बाग था, सीज़न ख़त्म हो रहा था। बस किसी किसी दरख्त पर इक्का दुक्का फल दिखाई दे रहे थे। ऊंची नीची, कच्ची, गैर हमवार ज़मीन और गहरी खामोशी।
जल्द ही इसका जी उचाट हो गया तो ताजी ने नहर पर जाने की तजवीज़ पेश की, लेकिन वो काफ़ी थक चुकी थी, भूख भी लग रही थी, घर जाना चाहती थी, तो उन्होंने भी इसरार नहीं किया। शहनाज की तरफ चलें? वापसी पर ताजी ने कहा तो इसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए और बोली, पहले मुझे घर छोड़ाओ, बेशक चली जाना। इसकी गुफ्तगू मेरी याददाश्त से बाहर है। हाँ तो फिर तो अब्बा और भाई ज़रूरी हमें निकलने देंगे। अब तो तुम्हारा बहाना था, कुछ नहीं कहते, अब घर ही चलो। फिर भी नहीं मानी। बावर्ची खाने में फ़ाखरा हांडी बना रही थी और सहन के कोने में बने तंदूर पर खाला पीनू रोटी लगा रही थी। नसीमा भी तंदूर के पास चली आई। अहे पुत्र, इधर क्यों आ गई? धुआं भी है और आग की गर्मी भी बहुत हो रही है। चल तो कमरे में चल कर बैठ। ओहो खाला, कुछ नहीं होता मुझे। ना भाई, तेरी अम्मा मुझ पर भरोसा करके छोड़ गई है। अभी तो बाहर की गर्मी खा कर आई है, अब आग के करीब बैठने की ज़िद कर रही है। अंदर चली जा। और इसे उठना ही पड़ा। वहाँ से कमरे में जाने के बजाय फ़ाखरा के पास चली आई। अरे इतना ढेर सारा ताज़ा पुदीना। हाँ, इसे खुश करके रखेंगे, इसका कहवा पेट के लिए अच्छा होता है। चटनी नहीं बनाओगी? इसे मायूसी हुई। तुम्हारा दिल करता है तो बना लो। अरे भाई, हम सादा से लोग, बस रोटी सालन खाकर पानी पी लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वैसे तुम बना लो। और वो भी झट तैयार हो गई। जब सिल बट्टे पर चटनी पीसनी पड़ी तो लग पता क्या कि अपने घर में तो ये काम ब्लेंडर में हो जाता था। यहाँ सब मौजूद था, लेकिन इनका कहना था वो भी कोई चटनी होती है, चटनी का मज़ा तो सिल पर आता है। भाभी ने गोश्त चने की दाल बनाया था। जी में आई कहे, चने की दाल डालने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो गोश्त का सालन ही अच्छा लगता है। फिर ज़ुबान दांतों तले दाप ली। शाम को फ़ाखरा के मियाँ यानी बड़े भाई साहब एक ढेर हरे चनों का उठा लाए कि आजकल मौसम था, उसे हरे चने तो अच्छे लगते थे, लेकिन इन्हें बनाना एक कठिन काम होता था। आज घर की सारी औरतें ये दाने निकालने बैठीं तो वो भी आ गई। बातें भी होती रहीं, काम भी, और पता भी नहीं चला। रात को सोने से पहले ताजी अपने दुपट्टे पर क्रोशिया बनाती रही और कितनी सफाई महारत से बना रही थी। नसीमा को बड़ी हैरत हुई। कल नहर पर चलेंगे, खाना घर से बनाकर ले जाएंगे, वहीं बैठकर खाएंगे। ताजी की तजवीज़ इसे बहुत अच्छी लगी, लेकिन सुबह नाश्ते से फारिग हुए थे कि सजी बनी शहनाज आ गई। सबसे मिलने के बाद ताजी को लेकर अलग थलग बैठ गई। नन्नी ने बताया कि ताजी से बहुत दोस्ती रही है शहनाज की। पहले भी जब आती थी, फिर समझो इन्हें बाकी दुनिया भूल ही जाती थी। और इसे अफसोस था आज का प्रोग्राम रह गया था। शहनाज की वापसी दोपहर का खाना खाकर हुई। खाला पीनू ने अपने हाथों से हरे चनों का सालन बनाया था और शहनाज की आमद पर मीठे चावल भी बनाए थे। जब से शहनाज होकर गई थी, ताजी बहुत खुश थी। पता नहीं ऐसा क्या कहकर गई थी कि इसका रंग ही बदल गया था। होंठों पर मुस्कुराहट तो जैसे ठहर गई थी। इसने सोचा ज़रूर, लेकिन ताजी से कुछ पूछा कुछ नहीं। वो मुर्गियों को दाना डाल रही थी कि खाला पीनू कहाँ किसी काम को हाथ लगाने देती थी। उसने ये प्याला खुद नन्नी के हाथ से ले लिया था। मुर्गियाँ और उनके नरम चूज़े इसे बहुत प्यारे लग रहे थे। वो पूरी तवज्जो उनकी जानिब लगाई बैठी थी। पता भी नहीं चला कब सरवर आकर इसके करीब बैठ गया। हाय अल्लाह, वो घबरा कर उठी। क्या हुआ? हांडी चूल्हे पर रखकर भूल गई हो? इसने भोलपन से कहा। नहीं, तुम जो यूँ आकर मेरे पास बैठ गए हो, किसी ने देख लिया तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। वह बड़ी मीठी नज़रों से इसे देख रहा था। नसीमा सिमट सी गई। सुनो, अगर अम्मा तुम्हारा रिश्ता डालें, तुम्हारे घर वाले कोई इतराज़ तो नहीं उठाएंगे ना? मुझे क्या पता, इसने बेनियाजी दिखाई। याद रखना, अगर इनकार हुआ उठा कर ले आऊँगा तुम्हें। वो कहकर चला गया और एक फ़ख्र, एक तमानियत रगो पे में उतर गई। कितना चाहता है मुझे, हालांकि ऐसी कुछ ख़ास तो नहीं हूँ मैं। या शायद हूँ, तभी तो जान देता है मुझ पर। सच्चा प्यार करता है, ब्याह करना चाहता है। अगले रोज़ शाम को इसकी शहर वापसी थी। पहले तो सरवर और खाला को इसके साथ जाना था, लेकिन अब प्रोग्राम बदल गया। सरवर के बजाय खाला और खादिम हुसैन, सरवर के वालिद, जा रहे थे। वही तैयारियां थीं। देसी घी, अंडे और आज तो साथ साथ ताज़ा खोया भी जा रहा था, जो बतौर ख़ास गांव के हलवाई से बनवाया गया था। मुझे शहर देखने का बड़ा शौक़ है। कितनी अच्छी ज़िंदगी होती है वहाँ की। साफ़ सुथरे छोटे छोटे घर और हर शय बाज़ार में आसानी से मिल जाती है।
3 टाइम हांडी बनाने का मसला ही नहीं, जी नहीं चाह रहा तो बाज़ार से मंगवा लो। वैसे भी गांव में तो बंदा काम कर कर के मर जाता है। ताजी जो कुछ कह रही थी नसीमा ने इख्तलाफ नहीं किया। रात वो देर तक बातें करती रही थी और जब नसीमा वापस जा रही थी तो ताजी ने अपने हाथ का काढ़ा व दुपट्टा इसे तोहफे में दिया था। नसीमा ब्याह कर गांव जा रही थी। इतनी जल्दी ये सब कुछ तय हो गया। किसी ने भी तो इसके और सरवर के प्यार में जालिम समाज बनने की कोशिश नहीं की। खाला पीनू ने तो अम्मा से कह दिया था इन्हें जहेज़ में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अम्मी अब्बा ने से खाली हाथ तो रुखसत नहीं करना था। जहेज़ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी बनाया इसने अपनी पसंद से अच्छा ही बनाया। ख़ुसूसन कपड़े तो बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत नफीस कामों के थे। वो सरवर को और सरवर इसे पाकर बहुत खुश था। शादी के पहले 15 दिन तो एक दूसरे में खोए ही गुजर गए थे। खाना नाश्ता सब कमरे में पहुंच जाता। वो दिन में भी अक्सर सोई रहती कि सरवर सुबह नाश्ते के बाद घर से निकलता तो शाम को ही वापसी होती, और फिर वो दोनों होते और महकती तन्हाई होती। 15वें रोज़ वो नाश्ता करने से पहले तैयार हो रही थी, आईने के सामने बाल संवार रही थी जब खाला पीनू चली आई। उठ गई मेरी नूह, चल शाबाश है, फ़ाखरा के साथ नाश्ता बनवाते। और सुन, तुम्हारे यहाँ चाय में दूध बड़ा कम डालते हैं, ज़्यादा दूध डाल के बनाना। इसे झटका लगा। वो तो सरवर के साथ आज खेतों में जाने का प्रोग्राम बनाई बैठी थी। बोली कुछ नहीं, चुपचाप चूल्हे के पास चली आई। इसे देखती फ़ाखरा ने परात इसकी जानिब खिसका दी और बोली, चाचा चाची को तो मैंने नाश्ता दे दिया है, अपना और अपने मियाँ का लेकर जा रही हूँ, बाकी तुम बना लेना। उफ़, इसने बेजारी से पेड़े बनाने शुरू किए। इतना सारा आटा है, सरवर भी नाश्ते में 2-2.5 पराठे तो आराम से ले लेता है, पता नहीं बाकी भी कितना लेता है। और यहाँ पर तो हाथ पर रोटी बढ़ाने का रिवाज है। हाथ पर रोटी बनाते इससे अच्छी खासी मुश्किल पेश आई। ताजी बावर्ची खाने में आई तो इसने सुख का सांस लिया। वो ज़रूर इसे इस मुश्किल से निकालती, लेकिन हैरत की इंतहा न रही जब इसने इसे देखा, जग में पानी निकाला और वापस चली गई। इसके बाद खाला पीनू आई और बोली, कल से नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फ़ाखरा दोपहर का खाना बनाया करेगी और तुम्हारे घर की हांडी मुझे पसंद नहीं है। मैं तो चलो चुप करके खा लेती थी, यहाँ कोई इस तरह की हांडी नहीं खाएगा। चाची का लहजा तो आम सा था, लेकिन नसीमा चौकन्नी हो गई थी। फिर इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं और हर बात पर इसका शहर की लड़की होना एक ताना बन गया। इतनी जल्दी थक जाती हो। रात को जब थकी हारी बिस्तर पर आती है तो सरवर का मूड ख़राब होने लगता। क्या करूं, पहले कहाँ किए थे इतने काम। वो रूहान सी हो जाती। कोई ज़्यादा काम नहीं है, इधर सारी औरतें करती हैं। असल में तुमने दूध मक्खन नहीं खाया ना। अम्मा बताती हैं तुम्हारे घर में तो दूध सिर्फ चाय के लिए आता है और मक्खन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेहद सुबकी महसूस करती। यहाँ अब ये बात घर का हर फर्द इसे जिताने लगा था। ढेरों ढेर गंदुम धोते, फिर इसे फैलाते, सहन में झाड़ू लगाते, आटे की भरी परात गूंथते। बार बार सोचती, मैंने ये क्यों नहीं सोचा था। जब बहू बनकर इस घर में आ जाऊंगी, पलंग पर तो नहीं बिठाई जाऊंगी। ये सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे। पता नहीं ये मोहब्बत में आंखों पर पट्टी क्यों बन जाती है। और जिसकी मोहब्बत में अंधी हो रही थी, अब तो वो भी रिवायती मर्द बन चुका है। वो खेत बागात जिनकी सैर की कशिश महसूस करती थी, यहाँ आकर पता चला है बड़े ज़िम्मेदारों के घर की औरतें सैर के बहाने लोड लोड नहीं फिरती। वो रियायत तो मेहमान होने के नाते हासिल हुई थी। आय हाय नी, कितनी सुस्त है, किस्मत मारी गई मेरी। हीरे जैसा पुत्र रोल दिया मैंने। उठ जा नी, अभी तक कपड़े ही नहीं धुले तुझसे। वो भैंस को चारा डाल दे। अब वो क्या कहती है, ऐसे मैले चिक्कट कपड़े धोने में कुछ वक्त तो लगता ही है। कहती भी कैसे, यही काम ताजी और फ़ाखरा तो झटपट कर लेती थी। फिर खाला की बेटी अपने मियाँ के शहरी दोस्त का रिश्ता ताजी के लिए लेकर आ गई। ताजी के तो पैर ज़मीन पर नहीं टिकते थे। वहाँ नसीमा को भी इसकी किस्मत पर रश्क आता था। शहजाद की बहन और माँ भी आई थी। ताजी इन्हें कैसी लगी कुछ पता नहीं चल सका कि ताजी शहजाद की पसंद थी और इन्हें अपनाना तो था। बड़ी सुघड़ है मेरी बेटी, जिस घर जाएगी सुख बखेर देगी। खाला पीनू मेहमान ख़वातीन को बता रही थी, और अब तो सारा दिन ताजी और नन्नी इसे अपने सुघड़पन के किस्से सुनाने के साथ साथ इसे इसके फुअड़पन पर टोका करती थी। अब वो क्या करती, जो काम यहाँ करने पड़े थे शहर में कहाँ तसव्वुर था इनका। ताजी का रिश्ता पक्का हो गया। अब वो जहेज़ की तैयारियों में लगी दिखाई देती।
कि एक सूटों पर कढ़ाई हो रही थी, मेज़ के कवर, तकियों के गिलाफ फाखरा काट रही थी कि निकम्मी छोटी बहू को कुछ अच्छी कढ़ाई नहीं आती थी। खाला पीनू ने 6 लिहाफ बनवाए थे जिनके गिलाफ शनील के थे और 2 लिहाफों पर गोटा भी लगाया गया था कि ताजी की शादी सर्दियों में करने का इरादा था। इन लिहाफों पर गोटा लगाते लगाते ताजी खो सी जाती, फिर होंठों पर मुस्कुराहट दबाकर टाँके भरने लगती। जहेज़ में रखे स्वेटरों में से एक खुद इसने बनाया था कि जहेज़ में जितनी चीज़ें लड़की के अपने हाथ की बनाई हों इतना ही उसका सलीका ज़ाहिर होता है। जहेज़ सज जाता है। ये बाज़ार से ख़रीदी हुई चीज़ें भला क्या अच्छी लगती हैं। ताजी की शादी पर वो कुछ ज़्यादा हाथ नहीं बटा सकी, इसे ये सब आता नहीं था। सरवर इससे खफा था। घर पर अब बड़ी भाभी ही छाई हुई थी। वो तो बहुत पीछे रह गई थी। कभी ताजी नन्नी से इसकी दोस्ती थी, खाला सदके वारी जाती थी, अब तो सब ख्वाब की बातें थीं। और तो और ये सरवर भी रिवायती मर्द बन चुका था। इसे अब हर हुक्म बजा लाने वाली बीवी चाहिए थी। वो मोहब्बत तो जाने कहाँ जा सोई थी। ताजी के ब्याह वाले रोज़ इसने बड़े अरमानों से साड़ी मुंतखब की थी। सरवर ने देखा, गुस्से से आग बगोला हो गया। इसे और इसके ख़ानदान को बेहया तक कह डाला। इसने इसी वक्त साड़ी तब्दील करके शलवार कमीज़ पहन ली और आंसू बहाते हुए साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दुल्हन बनी ताजी पर इसे रश्क आता रहा। वो टूटे दिल और मुस्कुराते लबों के साथ तकरीब अटेंड करती रही। आज मेरी कर्मा वाली धी अपने घर की हो गई, जिधर जाएगी राज करेगी। मेरी अकल वाली हुनर वाली बच्ची। रुखसती के बाद खाला पीनू कह रही थी। वलीमा के रोज़ ये सब शहर गए थे और इसने आज ताजी का घर देखा। एक हुक सी उठी। इसे अंदाज़ा नहीं था शहजाद इतना खुशहाल होगा। ताजी का कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन ये वो फर्नीचर तो नहीं था जो इसके जहेज़ में दिया गया था। यहाँ तो एक एक चीज़ बड़ी नफीस और कीमती थी। मेरे जहेज़ का सामान तो भी यूं ही रखा है, खोला तक नहीं, ताजी ने उन सबको बताया था ना। पर यह कमरा तो तैयार कर लेते, इतना महंगा ऐसा भारी फर्नीचर बनवा कर दिया है हमने। काली टाली की लकड़ी लगवाई है और ये क्या हल्का सा। अम्मा कह रहे हैं ना कल तक सेट कर देंगे। अच्छा, पर ये चादर जो बिस्तर पर है ये भी तेरे जहेज़ की तो नहीं? मैंने तो गुलाबी चादर पर इतने सोहने गुलाब के फूल कढ़वाए थे फाखरा से। अभी सामान वैसे का वैसे ही रखा है, ताजी ने फिर से कहा। अजीब सुस्ती के मारे लोग हैं, वो बुड़बुड़ाई। शादी के रोज़ दुल्हन ने बरी में आया जोड़ा पहना था तो आज मैके की तरफ का पहनना चाहिए था, लेकिन इसके नंद ने पार्लर भेजने से पहले फिर बरी का जोड़ा निकाला तो खाला पीनू चुप नहीं रह सकी। जहेज़ का कोई जोड़ा इस काबिल भी है भला? यहाँ हमारे रिश्तेदार मिलने वाले मौजूद हैं, हम वो कपड़े नहीं पहना सकते। उसकी नंद के अंदाज में कतियत थी। खाला का मुंह मारे हैरत और दुख के खुला रह गया। इतने अरमानों से बनाए गए कपड़े जिन पर कितनी मेहनत से जान मारी गई थी। ताजी और नन्नी ने कितने आराम से ये इसकी नंद उसकी बुराई करके चली गई। छोड़ो अम्मा, क्यों दिल बुरा करती हो? फाखरा ने बढ़कर सास को तसल्ली दी, जबकि वो चुपचाप बैठी थी। कि सुबह सवेरे जब वो वलीमा में शिरकत के लिए तैयार होकर निकलने लगे थे, खाला परवीन की नज़र इस पर पड़ते ही मिजाज बिगड़ गया था। सरवर, मुझे लगता है तेरी घरवाली को ताजी की शादी से खुशी नहीं हुई। देख तो कैसा फीके से रंग का जोड़ा पहना है और जेवर भी अपनी तरफ का जो कागज़ की तरह पतला है। बेइज्जती करवाएगी हमारी ताजी के ससुराल में। ये उल्टी खोपड़ी की है अम्मा। तंगो तारीख घरों में रहने की वजह से इसकी सोच में भी तंगी आ गई है। सबके सामने शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली आई। तभी गुस्से में जेवर उतारा, जोड़ा बदला और बरी का शोख गुलाबी कलर का निकाल कर पहन लिया जो काम से भरा हुआ था। जेवर भी वो जो खाला पीनू ने बरी में डाला था और जो इसकी सास के ज़माने का था, अब नस्ल दर नस्ल बहू बेटियों को मुंतकिल हो रहा था। पहन लिया और भीगी पलकों के साथ वो इनके साथ चल पड़ी। यहाँ ताजी के घर पहुंचकर जब शहनाज ने इसे देखा तो हैरान हुई। ए छोटी भाभी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, आज के फैशन पहचानती हो, फिर ये शादी भी इतने अच्छे घर में हुई है, ये क्या बनकर आ गई हो? और इसने देखा शहनाज ने बड़ा स्टाइलिश सा सूट और ज्वेलरी पहन रखी थी, बिल्कुल वैसी जैसी टीवी पर दिखाई जाती है। अब ताजी को कितने प्यारे अंदाज में तैयार किया गया था, लेकिन वो जिस घर में ब्याह कर गई थी वहाँ ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी।
خصوصاً بہوؤں کے لیے سوچا جاتا تھا کہ انہیں خاندانی روایت کو آگے لے کر چلنا ہے۔ رواج کے مطابق اگلے روز تاجی اور شہزاد گاؤں آئے۔ خالہ پینو نے خوب کھانے پکائے۔ فاخرہ کو تو پتہ نہیں، اس کی تو مارے تھکن کی حالت بری ہو گئی۔ تاجی آ کر یوں سب سے ملی جیسے برسوں کی بچھڑی ہو۔ گاؤں کی ساری سکھی سہیلیاں اس سے ملنے کو یہاں موجود تھیں۔ سب نے کھانا بھی یہیں کھایا تھا۔ تاجی جہیز کے 2-3 جوڑے لے کر آئی تھی، حالانکہ ایک رات یہاں گزار کر اسے کل صبح سویرے تو واپس چلے جانا تھا۔ اے بھابھی، دودھ پتی تو بنا کر دو۔ توبہ، وہاں تو کالی پتلی چائے ملتی ہے جسے دیکھ کر ہی ابکائی آتی ہے، اور ہانڈی بغیر گھی کے بالکل کم نمک مرچ والی، ہلکی سی روٹیاں۔ میں نے ایک کے بعد دوسری اٹھائی تو ساس نندے حیرت سے دیکھنے لگی۔ بھلا ایسے کاغذ کے نوالے کھا کر خاک پیٹ بھر سکتا ہے؟ آج تو جی بھر کے کھاؤں گی، اور اماں میں کھانا ساتھ بھی لے کر جاؤں گی۔ واپس جاتے ہوئے تاجی بے حد اداس تھی، اور اس کے ساتھ تازہ مکھن، 2 درجن دیسی انڈے، گڑ اور بھونا ہوا مرغ بھی جانے کو تیار تھے۔ شہزاد نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بھلا ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا وہاں بھی تو ملتا ہے۔ نا جی، مجھے تو یہی سب کھانے کی عادت ہے، تاجی نے اٹھلا کر کہا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن تیور بتا رہے تھے اسے یہ سب گٹھریاں لے کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تاجی کے جانے کے بعد وہ مہمان جو سے ملنے کی خاطر رک گئے تھے، اپنے اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کرنے لگے، اور نسیمہ کو دیکھ دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ گھر بکھرا ہوا تھا، بستر کی میلی چادروں کا ایک ڈھیر تھا۔ بے شک ننھی کام میں اس کے ساتھ لگ جاتی تھی، پھر بھی یہ بہت زیادہ تھا۔ شکر ہے گھر میں واشنگ مشین موجود تھی، لیکن ہینڈ پمپ چلا کر پانی نکالتے اس کے تو بازو کتنے دنوں تک درد کرتے رہتے۔ خوش نصیب ہے تاجی بیاہ کر شہر گئی ہے، جان چھوڑ گئی ہر وقت کی مشقت سے، اور میں پاگل یہ نہ سوچا یہاں آؤں گی تو کتنے ہی کام کرنے پڑیں گے۔ زندگی ایک مزدور کی طرح گزرے گی، بس سرور کی جھوٹی باتوں میں آ کے۔ کیسے پیارے دن تھے، کالج جایا کرتی تھی، 1.5 سال رہ گیا تھا BA پاس ہو جاتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جلدی جلدی ہاتھ چلایا کرو، اور سب سے پہلے اپنا کمرہ صاف کرو۔ میرے کپڑے بھی دھونے والے رکھیں، وہ بھی دھو دینا۔ ہر بات تمہیں سمجھانی پڑتی ہے۔ وہ بھابھی فاخرہ کو دیکھا، صبح سویرے اٹھ کر اپنا کمرہ شیشے کی طرح چمکاتی ہے، بھائی کے کپڑے دھونے کے بعد استری کر کے رکھتی ہے، ابا جی کے سارے کام بھی اس نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ میں تو پڑھی لکھی شہری بیوی لے کر پچھتا رہا ہوں۔ میرے گھر کی ساری عورتیں صبح سے شام تک کام کرتی ہیں، مجال ہے جو کسی نے بہانے بنائے ہوں۔ ہر کام ستھرا ہوتا ہے، تم جو کرتی ہو تو دیکھ کر بندہ سوچتا ہے نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ یہ سب مجھ سے شادی کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ وہ آج چپ نہیں رہ سکی۔ تیری اداؤں نے پھنسا لیا تھا۔ تم شہری لڑکیوں کو داؤ بھی تو بہت آتے ہیں۔ اس الزام پر وہ بس آنکھیں کھولے اسے دیکھے گئی، بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ شادی کے 10 روز بعد تاجی پھر آئی، تھکی تھکی، کچھ اداس تھی۔ شہزادی سے چھوڑ کر دوپہر کا کھانا کھاتے ہی چلا گیا، حالانکہ خالہ پینو نے کتنا روکا۔ بولا، خالہ جی یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، ہم شہر والے تو بڑے ہی مصروف ہوتے ہیں۔ اب بھی 1000 کام چھوڑ کر صرف اس کی ضد کی وجہ سے اسے چھوڑنے آیا ہوں۔ یہ عادی ہے اس زندگی کی، رکھ رکھاؤ سے اس کا دم گھٹتا ہے۔ تاجی چپ چاپ سنتے رہی، اور اس کے جانے کے بعد آزاد تتلی کی طرح ادھر سے ادھر اڑنے لگی۔ پھر تاجی 3 ماہ بعد ہی آ سکی۔ شہزاد مصروف بھی بہت رہتا تھا۔ اب جو آئی تو خالہ پینو اور سرور خود جا کر لے کر آئے تھے۔ خاصے رنجیدہ تھے۔ تاجی کے جہیز کے سامان کو شہزاد نے کمرے میں نہیں سجایا تھا کہ اسے وہ سامان پسند نہیں آیا تھا۔ تاجی کو کچن کا کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھی میں نمک مرچ گھول کر سامنے رکھ دیتی تھی۔ جب اس نے موسم بدلنے پر اپنے ہاتھ سے کپڑے سلائی کیے تو نندے کتنا ہنسی اور بولی تھی، یہ ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے پہن کر کسی مہمان کے سامنے ہرگز نہ آنا، اور خدا کے لیے اتنی ڈیزائننگ کی کوشش مت کیا کرو۔ جو لیس فیتا ملتا ہے اٹھا کر قمیض پر سجا لیتی ہو، اور پلیز بالوں میں پراندہ ڈالنا چھوڑ دو، بھائی کے دوستوں کی بیویاں مذاق اڑاتی ہیں۔ شہزاد کہتا، اپنا لہجہ ٹھیک کرو، یہ جو دیہاتی ٹچ ہے نا تمہاری باتوں میں مجھے سخت شرمندہ کرواتا ہے، اور ماسیوں کی طرح گھر کی صفائی میں مت جوتی رہا کرو، کام کرنے والی آتی تو ہے۔ اسے گھر کی سیٹنگ تو دور کی بات اپنے کمرے کی کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور ان کے خیال میں وہ جو بھی کرتی
गलती करती, कहीं जाना होता तो इसका मेकअप छोटी नंद करती। शहजाद कहता था, तुम लिपस्टिक और आई शेड के जो कलर इस्तेमाल करती हो ना, चुड़ैल लगने लगती हो। तानिया से मशवरा लिया करो और इससे कुछ सीखने की कोशिश भी करो। पीनू खाला की सुघड़ सियानी बेटी ससुराल जाकर फुअड़ कहलाती थी, बिल्कुल ऐसी जैसे नसीमा यहाँ आकर नालायक बहू का खिताब हासिल कर चुकी थी। ताजी अपने जहेज़ के कपड़े साथ लेकर आई थी और तीनों से कह रही थी, वहाँ मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती, सबको बुरे लगते हैं। कितनी मेहनत से मैंने उन पर काम किया था, अब ये तुम तीनों रख लो। इसकी बात पर सरवर, अम्मा और बड़ा भाई जो यहाँ मौजूद थे अफसुर्दा हो रहे थे। फाखरा ने झट अपनी पसंद के सूट उठा लिए। नन्नी ने भी ऐसा ही किया, वो हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। तुम भी ले लो ना भाभी, ताजी ने इसे मुखातिब किया। मेरी बरी में तो पहले ही ऐसे जोड़ों की भरमार है, मैं लेकर क्या करूँगी। इसने बेजार से शक्ल बनाकर कुछ जिताने वाले अंदाज में जवाब दिया, फिर उठकर चूल्हे के पास चली आई। इसे रोटी बनाना थी। अंदर कमरे में ताजी ससुराल में होने वाली ज़्यादतियों के किस्से सुना रही थी। इसे याद आया, कल सरवर अब्बा से कह रहा था, अब्बा मैं ये सोच रहा हूँ इधर अपने बाग में मूंगफली की काश्त का तजर्बा किया जाए। और इसके अब्बा ने कहा था, ना पुत्र, इधर की ज़मीन मुवाफिक नहीं, अच्छी से अच्छी किस्म भी काश्त करने को लाएगा तो मुरझा जाएगी। इसके और ताजी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। इन्हें मुवाफिक ज़मीनें नहीं मिली थी और ये दोनों अपने अपने घर की सुघड़ सियानी बेटियां मुरझाने लगी थीं। ये नावल तो कंप्लीट हुआ। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।